ویلکم کریں گے طارق علی نظامانی صاحب کو. بہت شکریہ طارق صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے یہ جو سروے ہے پاکستان سوشل اینڈ لیونگ سٹینڈرڈ میجرمنٹس کا, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہاں پر سندھ جو ہے اس کو بتایا گیا ہے کہ وہ ٹاپ پر ہے, 16% کے ساتھ یہاں پر کچرا اٹھایا جاتا ہے, لیکن اوور آل اگر ہم سچویشن دیکھیں, پنجاب کی سچویشن دیکھیں, وہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ صفائی ستھرائی ہے, اس کی مثالیں چائنا دے رہا ہے. یہ سروے کہہ رہا ہے کہ سندھ کے اندر زیادہ بہتر نظام ہے. سب سے پہلے تو شکریہ آپ نے ہمیں آن بورڈ لینے کا. جی میں اس سروے کے علاوہ بھی میں ایک سروے کا آپ کو ذکر کروں گا کہ پروجیکٹ انٹرنیشنل ایک پرائیویٹ فرم ہے جسے فیڈرل گورنمنٹ نے پلاسٹک ویسٹ پالیسی بنانے کا ٹاسک دیا ہے. ان کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ پورے پاکستان میں 50 ملین ٹنز ایئرلی گاربیج ویسٹ جنریشن ہوتی ہے. ان کی یہ رپورٹ کہتی ہے کہ 60% جو ہے وہ ایفیشنسی ہے اوور آل پاکستان کے تناظر میں وتھ ریسپیکٹ ٹو کلیکشن اینڈ ڈسپوزل. ان کی یہ رپورٹ کہتی ہے کہ 7 شہر ہیں جو پاکستان کے جو کہ مور دین 90% ایفیشنٹ ہو چکے ہیں, جس میں سے سندھ میں کراچی, حیدرآباد, سکھر آ جاتے ہیں, اور پنجاب میں لاہور, پنڈی, اسلام آباد اور مردان. تو اس رپورٹ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو اربن کور سینٹرز جس کو ہمارا بورڈ اس وقت ڈیل کر رہا ہے, الحمدللہ ہم نے جو پاسٹ 4-5 ایئرس میں ہم نے کافی حد تک ایک ایفیشینٹ اور کمپلائنٹ سسٹم ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے. جو کنونشنل سسٹم انڈر پریکٹس تھا, میں تھوڑا بیک گراؤنڈ دوں گا کہ 2014 کا ایکٹ پاس کیا گیا جس کا مقصد یہ تھا کہ کنونشنل سسٹم کو ماڈرن ویسٹ مینجمنٹ سسٹم میں کنورٹ کرنا تھا, اور اس طرح پھر فیز وائز انٹرنیشنل ٹینڈرنگ ہوئی. 2016 میں 2 ڈسٹرکٹس کراچی کی ٹینڈرنگ پروسیس کمپلیٹ ہوا, 2017 میں اور 2 ڈسٹرکٹس کی ٹینڈرنگ پروسیس جو وہ فائنلائز ہوئی, اور باقی جو 2 اضلاع تھے وہ 2021 میں جیسے کہ ہمیں ونس آفٹر NOC فرام کنسرن ڈی ایم سیز اور کاؤنسل ریزیشن ہمیں پروسیڈ کرنا تھا. تو اس طرح 2022 میں ہم پوری کراچی کا 70% علاقہ, یہ تو چلے ہم نے جو سروے سامنے رکھا ہے یہ صوبوں کا ایک کمپیریزن آپ کے سامنے رکھا ہے, لیکن اگر ہم خالی سندھ کی بھی بات کریں صرف 16% ہے. یہ کوئی بہت اچھا نمبر نہیں ہے پورے کراچی یا سندھ کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے. کیا ریزن ہے ہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صفائی ستھرائی کے نظام کو بہتر کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ کیا فنڈز کی کمی ہے, کیپیسٹی موجود نہیں ہے, انٹینشن موجود نہیں ہے, سسٹم ویسا موجود نہیں ہے؟ ریزن کیا ہے اس کی؟ جی میں آپ کو تھوڑا ایکسپلین کروں کہ آپ کو آئیڈیل ویسٹ مینجمنٹ سسٹم بنانے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں. اس میں فرسٹ آف آل جو ہے اویئر سوسائٹی. جس طرح لاسٹ ایئر لاہور ہائی کورٹ نے آرڈر پاس کیا تھا کہ ہر ادارہ ہر ویک جو ہے انوائرمنٹ پلس ویسٹ مینجمنٹ سیشن ہولڈ کرے گا. اسی چیز کو ہم نے نظر میں رکھتے ہوئے ہم نے پورے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کو ہم نے اوور ویو دیا ہے ماڈرن ویسٹ مینجمنٹ کا, اور ہم نے ان کے ساتھ کلوز کولابوریشن میں ہیں. اور پلس دوسری چیز جو ہے ڈسپلن انسٹیٹیوشنز, الحمدللہ ہم نے کافی حد تک اپنے ادارے کو ڈسپلن کر دیا ہے. یہ جو سارے میجرمنٹس لیے گئے ہیں طارق صاحب, یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ اداروں کے ساتھ جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں ان کے ساتھ کولابوریشن کی جا رہی ہے تاکہ چیزیں بہتر کی جا سکیں, ڈیفینیٹلی اویئرنیس کے لیے کوئی بہتری آبزرو کیا آپ نے اس سے؟ جی الحمدللہ میں آپ کو ایک اور سروے جو ہم نے خود کروایا ہے اس کی میں آپ کو ڈیٹیلز دے رہا ہوں. ہم نے 6 ماہ پہلے ہم نے ایک فارم ڈیولپ کیا, اور ہم نے 246 ہیں یونین کمیٹیز, ان سب میں ہم نے وہ اپنا فارم شیئر کیا, اور الحمدللہ اس کا جو فیڈ بیک تھا more than 75% elected representatives show satisfaction over our performance. تو الحمدللہ میں چاہوں گی لائیو فیڈ بیک جو ہے نا وہ بھی آنا چاہیے. جتنے بھی کراچی والے, سندھ والے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, اگر آپ اپنا فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں, بیکاز وی ریئلی وانٹ پیپل ٹو کم فارورڈ اینڈ ٹیل اباؤٹ دیئر اسٹوریز اینڈ اباؤٹ دیئر پلیس جہاں پر وہ رہتے ہیں, کہ وہاں پر کیا ابھی بھی کچرے کے ڈھیر ہیں. کیونکہ جہاں تک مجھے یاد ہے اور جتنے بھی ہمارے کراچی سے ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ابھی بھی کچرے کے ڈھیر کراچی کے اندر ڈگے ہوئے ہیں. پلیز آگے آئیے, کال کیجیے اور ہمیں بتائیے. ایم ڈی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ہوتے ہیں اپنے چینل پر کئی جگہوں سے رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کچرے کے ڈھیر ہوتے ہیں. مجھے تھوڑا سا یہ بتا دیں طارق صاحب کہ کوئی کسی علاقے میں اگر کچرا ہے اور وہ رپورٹ کرنا چاہتا ہے یا وہ کمپلین کرنا چاہتا ہے یا صفائی وہاں پر جو مسائل ہیں اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہے, کہاں پر رابطہ کر کے بتا سکتا ہے آپ کو؟
मैडम पिछले 6 साल से हमारी मोबाइल ऐप लॉन्च है। हमने 6 माह पहले और हमारा कंप्लेंट नंबर 1128 लॉन्च हमने किया हुआ है। 6 माह पहले हमने यू फोन की कोलैबोरेशन से हमने एक डेडिकेटेड कॉल सेंटर एस्टेब्लिश किया है विद 25 डेडिकेटेड लाइंस जो राउंड द क्लॉक जो है वो फंक्शनल होता है और जो भी रजिस्टर्ड कंप्लेन होती है ऑन वेरी सेम डे रिजॉल्व की जाती है। और मैं एक और आपको चीज बताना चाहूँ कि हमने जो ये ट्रांसफॉर्म किया कन्वेंशनल को मॉडर्न वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी में, तो यहाँ पर तकरीबन 3000 की चराकुटियां थी। ठीक है, साथ तारिक साहब हमारे साथ सईद रिजवान मौजूद हैं नॉर्थ कराची से, उनकी जरा कॉल ले लेते हैं। रिजवान, थैंक यू फॉर कॉलिंग। बताइएगा क्या सिचुएशन है आपके इलाके की, कचरा उठाया जाता है रोज? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं साबिक काउंसलर भी हूँ, मैं नॉर्थ औरंगाबाद टाउन UC 5 से बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर पहले गाड़ी आती थी सेंट सॉलिड वालों की ना गली में, लेकिन कचरा नहीं उठाती थी। ऐलान यही करा था कि कचरा घर घर लगी, लेकिन कचरा नहीं उठाती है। दूसरा, अब तो गली के अंदर गाड़ी आती ही नहीं है, रोड तक आती है। रोड से जो उन्होंने जो ये गली में अफवानी आते हैं जो डंप करते हैं वो कचरा वहाँ से उठा के ले जाते हैं, लेकिन गली से घर घर से कचरा नहीं उठाते हैं। मैं सुना यही था कि ये घर घर से कचरा उठाएंगे। ये अभी साबिक काउंसलर बात कर रहे हैं। तारिक साहब हमारे साथ है, वो कहते हैं कि अब तो निजाम बड़ा अच्छा है। आप कह रहे हैं कि पहले आती थी गाड़ी, अब तो गाड़ी भी नहीं आ रही है। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये काइंडली हमारे सिस्टम में ये कंप्लेन लॉन्च करें। और मैं पूछ लेती हूँ, कंप्लेन लॉन्च की है रिजवान? हो सकते हैं जहाँ पे कुछ पॉकेट्स हो सकते हैं जहाँ पे कंपनी कंप्लेन मैंने टाउन में भी की है, लेकिन कोई एक सेकंड तारिक साहब साथ ही रहेगा। जी रिजवान, क्या कह रहे हैं आप? जी मैं ये इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सिस्टम में कंप्लेन करें यहाँ की। तो रिस्पांस टाइम क्या है तारिक साहब? अगर वो अभी कंप्लेन लॉन्च कर देते हैं तो कितने दिनों के बाद रिस्पांस होगा, या एफिशिएंट कितना है, कितने एफिशिएंटली काम होगा? आज विद इन 8 आवर्स कंपनीज को मैंडेट दिया हुआ है कि वो 8 घंटे में वो चले वो ऑन एयर कंप्लेन कर तो रहे हैं। तारिक साहब, रिजवान अपने एरिया के बारे में बता दीजिए, कौन सा नॉर्थ कराची का कौन सा एरिया है? नॉर्थ नाज़िमाबाद से। नॉर्थ नाज़िमाबाद, ठीक है। तो नॉर्थ नाज़िमाबाद की कंप्लेन तो तारिक साहब ऑन एयर ही आ गई है, वहां पर गाड़ियां भिजवा दीजिए ताकि कचरा उठा दे। ठीक है, पूरे दिन के हिसाब से बताइएगा 24 घंटे के अंदर कितनी कंप्लेंट्स आती हैं, कुछ डेटा हमारे साथ शेयर कीजिए, और फिर उनको रिजॉल्व करने की रेशियो क्या? काफी मेरे ख्याल में कि किसी रोज 40 आती हैं, किसी रोज 50-60 इस तरह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है काफी हद तक जो हम जितना मसाइल हैं कराची के 40-60 कंप्लेंट्स तो अपेरेंटली तो बहुत कम लग रही हैं। अच्छा, थोड़ा सा बता दें किस इलाके से, किस एरिया से कंप्लेंट ज्यादा आती हैं, कहाँ पर मसाइल ज्यादा हैं जिनको हल करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं या इस पर काम किया जा रहा है? जी जैसे कि तो कुछ कोरंगी के इलाके आप कह सकते हैं, कोरंगी या इवन ये नॉर्थ कराची, तो इस पे हमने हम फोकस करा रहे हैं। और इसमें जो अगर मैन पावर मशीनरी का इशू है तो वो कंप्लेन करने पर ही ये ऑपरेशन किया जाता है, सफाई की जाती है? मैडम ऐसे नहीं है, मैडम ऐसे नहीं है कि कैसे है? मैं आपको तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि हमने यहाँ पर कराची में जो कन्वेंशनल सिस्टम था उसके तहत 3000 की चराकुंडियां थी, जो कि हमने एट सोर्स सिस्टम इंट्रोड्यूस करके 2500 हम एलिमिनेट कर चुके हैं। और रिमेनिंग जो कचरा कुंडियां हैं वो अलाइड एजेंसीज के एरियाज में फॉल करती हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, हमारे साथ एक और लाइव कॉलर मौजूद हैं कराची से, तो एक कॉलर को हमने शामिल किया, उन्होंने सूरत हाल बता दी अपने इलाके की। लाहौर में क्या सूरत हाल है, क्योंकि जो सर्वे है ये लाहौर के बारे में भी कुछ बता रहा है और सिंध के बाद ही इसका नंबर आ रहा है, तो जरा पूछ लेते हैं। हारून हमारे साथ हैं। हारून, क्या सूरत हाल है? आप लाहौर में रहते हैं, वहां पर क्या सूरत हाल है कचरा उठाने की? किस तरह कितनी एफिशिएंसी से काम होता है? मैडम ऐसे है कि मैं जिस जगह रहता हूँ ना, मेरा हल्का नंबर 86 है, UC 86, और ये नवाज शरीफ का हल्का है। ठीक है। इसमें सफाई वाला बंदा बिल्कुल नहीं आता। मुझे जाके नाज़िम के पास जाना पड़ता है, मुझे उसको कहना पड़ता है कि यार बंदा नहीं आया हुआ। वो कहते हैं हमारे पास बंदे कम है, बंदे हमारे पास थोड़े हैं। इसमें हमारा क्या कसूर? हमारे तो बिल में पैसे लग के आते हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये वो नवाज शरीफ साहब का हल्का है, वो ताहयात कायद है मुस्लिम लीग नून के और CM साहिबा के वालिद है, उनके हल्के की बात कर रहे हैं आप? जी ये UC 86 है और हमारे है नाज़िम है पापशाह साहब। ओके। उस हल्के में अगर आप आके देखें तो इस हल्के में इतना गंद पड़ा हुआ है, बजाय सिर्फ वो बाहर की सड़क साफ करते हैं जहाँ के लोगों ने गुजरना होता है।
गली मोहल्ले वालों को कोई हाँ, सुथरा परेशानी पंजाब नहीं की है। मुहिम भी चला रही है मरीम नवाज साहिबा। हम तो शिकायत कर करके तंग आ गए हुए हैं। मरीम ठीक साहिबा है, इतना चले काम ये कर रही है, रजिस्टर हो गई है ऑन हमारे एयर आपकी शिकायत हारून। हम एक मरतबा फिर से रीइटरेट भी इसको कर देंगे। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। एक मरतबा फिर हम तारिक साहब की तरफ ही चलते हैं। अच्छा तारिक साहब, जो ऑलरेडी कचरा कुंडियाँ इस वक्त मौजूद है, आप बता रहे थे कि उनके ऊपर भी काम किया जा रहा है, थोड़ा सा उसके नंबर्स भी शेयर कीजिएगा कि कितनी कचरा कुंडियाँ हैं कराची के अंदर, खास तौर पर लेट्स टॉक अबाउट कराची ओनली। और अभी तक मैडम थोड़ा मैं सवाल तो सुन लेना तारिक साहब, सवाल तो सुन लें, कितनी कचरा कुंडियां हैं और कितने अरसे में कार्रवाई करके कचरा कुंडियों को कम किया जा रहा है, प्लान क्या बनाया गया है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ से? जी मैडम, बड़ा अच्छा सवाल है मैडम। हमने एट सोर्स स्ट्रेटेजी जो है वो डिवाइस की है। एट सोर्स स्ट्रेटेजी इस तरह से है कि जो वर्टिकल बिल्डिंग्स हैं या बिजनेस हब्स हैं, वहाँ पर हम बिन मैनेजमेंट के थ्रू हमारी कलेक्शन होती है। और उसके अलावा जो जहाँ पर सेटल्ड एरियाज हैं वहाँ ब्लॉक कलेक्शन स्ट्रेटेजी के थ्रू कलेक्शन हो रही होती है। और तीसरा, जैसे कि आपके इल्म में होगा, कराची में 30% इलाका जो है वो कच्ची आबादी बेस्ड है। तो कच्ची आबादी, वहाँ पर कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर इवन 4 लेन गाड़ी भी मूव अराउंड नहीं कर सकती, तो वहां पर हम हैंड कार्ड लेपर और डोर स्टेप स्ट्रेटेजी के थ्रू हमारी कलेक्शन हो रही होती है। तो जो प्रीवियस जो कन्वेंशनल निज़ाम था वहां पर 3000 कचरा गुडियाँ थी, और हम 2500 एलिमिनेट, मोर देन 2500 हम एलिमिनेट कर चुके हैं। और प्लस मैं और एक एड ऑन करना चाहूंगा कि यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 4 मॉडर्न GTSs अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि जल्दी हमारे सिस्टम का हिस्सा